Assalamu alaikum respected students, how are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Respected students, dear students, your tutor, your instructor, Mr. Amir Khan Niazi is again in front of you. We are learning basic English and English language course. Today we have lecture number 9 and today we are learning about personal pronouns. How can we use personal pronouns in our daily usage of life? और इसके अलावा हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. Dear students, in first person pronoun we have subjective case. In subjective case, first of all, the first person pronoun is the number one first person pronoun is I. We use I as a subjective case, and in possessive case we use I as my and mine, and in objective case we use I as a me, and in reflexive case we use I as myself. I will change in possessive case in my and mine, in objective case I will change into me, and in reflective case I will change into myself. The second first person pronoun is we. We use as a subjective case and a nominative case, but in possessive case and in adjective case it will change into our and ours, and in objective case it will change again into us, and in reflexive case it will change into ourselves. The second person pronoun is you. We will use you as a subjective and as a nominative case, but in case of possessive and adjective case it will change into your and yours, and in objective case it will again change into your, and in reflexive case for singular it will change into yourself, and in for plural it will change into yourselves. In third person pronouns we have 4 third person pronouns. First of all, we have he will change into possessive pronoun into his, and in objective case it will change into him, and in reflexive case it will change into himself. The second third person pronoun is she. She will be used as a subjective and nominative case, but in possessive case it will change into her and hers, and in objective case it will change into her, and in reflexive case it will change into herself. The third person pronouns is there, they. We will use they as a subjective and nominative case, but in possessive case it will change into their and theirs, and in objective case it will change into them, and in reflexive case it will be changed into themselves. The last third person pronoun is it. It will be changed in possessive case as its, and as objective case it will be changed into it, and in reflexive case it will be changed into itself. तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने एक टेबल जो है रखा है पर्सनल प्रोनाउन का, कि कैसे हम इनको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को पोजेसिव में या फिर रिफ्लेक्सिव में जो है ना चेंज कर सकते हैं. हम अपनी कम्युनिकेशन में किस तरह जो है वो नाउन की जगह पे प्रोनाउंस का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसको डियर स्टूडेंट डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिखता हूं आई एम अ टीचर. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देखें आई को जो है मैंने एज अ सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस जो है ना वो इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया. यहाँ पे अगर मैं आई को जो है ना वो चेंज करना चाहूं, आई को एज अ सब्जेक्ट जो है ना वो मैंने यूज किया, अगर इसका मैं पोजेसिव जो है ना वो सेंटेंस यहाँ पर लिखना चाहूं तो वो क्या होगा. जैसे मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में मार्कर है, तो मैं कहूंगा दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, या मैं कह सकता हूं इट इज माई मार्कर. अब डियर स्टूडेंट ये देखें जी, हमने दिस का भी इस्तेमाल करना सीख लिया, इट का भी इस्तेमाल करना सीख लिया, लेकिन हमारा जो पर्पस था कि हमने पोजेसिव केस को इस्तेमाल करना सीख लिया सेंटेंस में माई. चूंकि ये जो है ना वर्ड माई पोजेशन से है, पोजेसिव केस है, तो पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, कि कोई चीज आपकी मलकियत में हो, कोई चीज जो आपसे मंसूब हो, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, तो इसलिए आप माई का जो है ना वो माई को एज अ पोजेसिव केस जो है वो यूज करते हैं. या इसी को जो है ना वो मैं मसलन क्या एज एन ऑब्जेक्टिव केस में यूज करूं, तो मैं कैसे यूज करूंगा कि दिस मार्कर या दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी. ठीक है, यानी कि आप देखेंगे मैंने
ऑब्जेक्टिव केस में मी को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है इस्तेमाल किया। पहले मैंने आई को एज एन सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर मैंने आई को मैंने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर मैंने माई को पॉजेसिव केस में इस्तेमाल करना सिखाया, और अब मी को मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको एज एन ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करना सिखाया। अब माई सेल्फ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है। आई माई सेल्फ wrote this letter। ठीक है कि डियर स्टूडेंट देखें कि आपने खुद जो काम आप खुद करते हैं, आपने खुद किया, तो आपने एज एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी यहां पर जो है ना ये यूज हो रहा है कि ये नाउन पर जो है ना और सब्जेक्ट पर स्ट्रेस दे रहा है, फोकस कर रहा है। तो माई सेल्फ को आपने एज ए यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना सीखा। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम जो बाकी प्रोनाउन है उनको भी इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वी है, तो हम यहां पे लिख देते हैं वी आर गुड स्टूडेंट्स। आप यहां पर डियर स्टूडेंट देखें, वी को मैंने एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, जमा के सीगे में इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी कि अगर हम एज अ क्लास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है या जो भी हैं, ठीक है, तो हम वी को जमा के सी के तौर पर प्लूरल के तौर पर जो है इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब हम पॉजेसिव केस देख लेते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है, आवर स्कूल इज द बेस्ट इन एरिया, या यहां पे मैं लिख सकता हूं इन नाजनाबाद। अब डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने आवर को एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ना वो इस्तेमाल किया यहां पर कि हमारा स्कूल एरिया में या नाजनाबाद में सबसे बेहतरीन स्कूल है। तो यहां पर आवर किसको शो कर रहा है? पोजेशन को जो है ना वो शो कर रहा है। ठीक है, या मैं यहां पर अब आवर्स को अगर आप जो है ना इस्तेमाल करना सीखें तो वो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? दीज आर आवर्स चेयर्स। ठीक है, दीज आर आवर बुक्स। ये भी हमारे में आ जाएगा कि ये किताबें हमारी हैं या ये कुर्सियां हमारी हैं। ठीक है, ये कुर्सियां हमसे ताल्लुक रखती हैं। ठीक है, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा? पोजेशन में आ जाएगा। या मैं क्या लिख देता हूं, दीज बुक्स बिलोंग टू अस, कि ये किताबें हमारी हैं या हमसे ताल्लुक रखती हैं। ये भी पोजेशन के मायनों में आ जाएगा, लेकिन यहां पर जो अस है वो एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो डियर स्टूडेंट यहां पर आया है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको भी आप इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप पिकनिक पे चले जाते हैं, आप कोई वहां पर एक्टिविटी करते हैं, कोई राइस आप कुक करते हैं, तो आप यहां पे क्या उसका सेंटेंस बता दें। घर में कोई एक्टिविटी करते हैं, वी कुक्ड राइस फॉर आवर सेल्फ। तो देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी इस्तेमाल करना सीख लिया। ठीक है, वी को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना सीखा आपने, और आवर्स को एज अ पॉजेसिव जो है ना प्रोनाउन इस्तेमाल करना सीखा। फिर जो है ना अस को आपने ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल करना सीखा, और उसके बाद आपने आवर सेल्फ को एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करना सीखा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बहुत आसान है। प्रोनाउंस को जो है ना वो सेंटेंस में या किसी लेट्स सपोज आप पैसेज में इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ में इस्तेमाल करते हैं, कोई पैराग्राफ आप लिखते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसमें भी आप प्रोनाउंस का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास जो है ना वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू। तो हम यहां पे लिख देते हैं यू आर अ गुड क्रिकेटर, कि तुम बहुत अच्छी क्रिकेट जो है ना वो खेलते हो।
क्रिकेटर, यानी कि जो स्पोर्ट है क्रिकेट, उसमें तुम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, तो उसके लिए आपने यू को एज अ सब्जेक्ट जो है ना वो इस्तेमाल करना सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप पोजेसिव जो केस है या पोजेसिव जो प्रोनाउन है यूर, उसको भी इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ठीक है, इसको एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ठीक है, पोजेसिव में भी इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर योर फादर इज अ डॉक्टर, योर फादर इज अ डॉक्टर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूर को इस्तेमाल करना सीखा। ठीक है, करना सिखाया यहाँ पर कि आपके जो वालिद हैं वो एक डॉक्टर हैं, यानी कि वो एक डॉक्टर के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो आपने जो है ना, यानी कि इसको आपने वो रिलेट कर दिया, किसी से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आपने उसको जो है ना, यानी कि उस फादर को आपने उसके साथ रिलेट कर दिया कि वो जो डॉक्टर हैं, वो जो आपका दोस्त है, उसके जो है ना फादर जो है ना वो एक डॉक्टर है। तो आपने उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो यूर, यानी पोजेशन के तौर पर प्रोनाउन को आपने इस्तेमाल किया, योर फादर इज अ डॉक्टर। अच्छा, कोई चीज आप किसी से सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी का आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो किसी का कोई ज्योमेट्री बॉक्स गिरा हुआ है, कोई पेन गिरा हुआ है, तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं, सवाल करते हैं, इज इट यूर्स? ठीक है, इज इट यूर्स, कि क्या ये तुम्हारा है? ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ये जो मार्कर, ये जो पेन नीचे गिरा हुआ है, आप अपने दोस्त को नीचे से उठा कर देते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं, इज इट यूर्स, क्या ये तुम्हारा है? तो अगर मिसाल के तौर पर जो है ना वो कहता है यस यस इट्स माइन, इट्स माइन, कि ये मेरा है, तो यहां पर देखिए आपने माइन को भी एज अ पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना सीखा, कि कैसे आपने सवाल का जो है ना जवाब दिया और जवाब में आपने बता दिया कि जो है ना कि ये मेरा मार्कर है या ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है। ठीक है, तो जो है ना आपने यहाँ पर यूर को पोजेसिव प्रोनाउन और यूर एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि यू होता है वो एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और डियर स्टूडेंट्स एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हम उनका इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ही इज अ गुड बॉय या ही इज अ शेफ, कि जी आपके वो एक शेफ है किसी होटल में, ना होटल। ठीक है, हिज मदर इज आल्सो सर्विंग इन अ होटल। ठीक है, तो देखें आपने डियर स्टूडेंट ही को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, हिज को भी आपने एज अ पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल किया। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसी तरह हिम को भी और हिमसेल्फ को भी इस्तेमाल करना जो है ना वो सीख सकते हैं किसी ना किसी सेंटेंस में। लेट्स वो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ही हिमसेल्फ डिड दिस जॉब। ठीक है, कि उसने खुद ही ये कोई काम किया, कोई काम परफॉर्म किया, तो हिमसेल्फ का भी आपने इस्तेमाल करना सीख लिया। या मिसाल के तौर पर आप यहां पे लिखते हैं ही कुक्ड राइस फॉर हिम। ठीक है, यहां पर हिम का सीगा जो है ना आपने इस्तेमाल किया, द प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, मसलन अपने फादर के लिए या मिसाल के तौर पर अपने दोस्त के लिए, तो आपने हिम को भी इस्तेमाल करना डियर स्टूडेंट सीख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, शी है, यानी कि यहां पर आप शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी सेंटेंस में। शी हर सेल्फ, यहां पर क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ की जगह पे डियर स्टूडेंट हर सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी शी आ जाएगा, शी कुक्ड राइस फॉर हर। ठीक है, अब यहां पे हिम भी लगा सकते हैं, यहां पर देम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अस भी लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह आप प्रोनाउंस को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना डियर स्टूडेंट्स सीख सकते हैं। ठीक है, अब दे है, दे आर विजिटर्स,
तो आपने जो है ना जमा का सीगा इस्तेमाल किया थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए, ठीक है। दे को आपने इस्तेमाल किया, दे आर विजिटर्स के वो सियाह हैं, ठीक है। देयर कंट्री इज अमेरिका, या आप कोई किसी भी मुल्क का नाम लिख देते हैं कि उनका मुल्क कौन सा है, वो किस मुल्क से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये सेंटेंस यूज किया तो आप इसी को देम को भी आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर आपने लिखा शी कुक राइस फॉर देम, कि उन्होंने उस लड़की ने, ये वो कोई भी लड़की है, तो उसने किसी के लिए खाना पकाया, तो आप देम का जो है ना वो सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हमेशा डियर स्टूडेंट्स बेजान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या फिर एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई सा अ डॉग इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या इट इज अ फेथफुल एनिमल। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें हम किस तरीके से जो है ना डिफरेंट प्रोनाउंस को अपनी डेली जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन, उसमें इस्तेमाल करना सीखते हैं। और इसकी मदद से हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल और आसान बनाते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो पूरी देखिएगा, इसका कंप्लीट लेक्चर जो है ना वो सुनिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसे पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और इसको दूसरों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।